کے نام پر زہر بیچنے والے مافیا کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے سرگودا میں کارروائی کرتے ہوئے 3000 لیٹر دودھ تلف کر دیا۔ فوڈ اتھارٹی حکام کے مطابق کوٹ مومن میں جعلی یونٹ پر پاؤڈر، کیمیکلز اور گھی سے سفید محلول تیار کیا جاتا تھا۔ سلمان کو ضبط کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے کوہاٹ میں نئے سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا افتتاح کرا دیا گیا۔ خیبر پختونخوا سینٹر امپروومنٹ پروجیکٹ کے تحت منصوبہ 3 سال کی مدت میں 6.5 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا۔ WSSC کے زیر اہتمام تقریب میں ڈپٹی کمشنر کوہاٹ ڈاکٹر عصمت وزیر نے منصوبے کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پروجیکٹ کی بروقت تعمیر سے سیویج کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جلال پور بھٹیا میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہری کو قتل کر دیا۔ نواحی علاقے کوٹ اسحاق میں علادیتا اپنے گھر کے باہر مال مویشیوں کو چارہ ڈال رہا تھا کہ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں وہ جان کی بازی ہار گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ قتل کی وجہ پرانی دشمنی بتائی جاتی ہے۔ فیروز والا کے علاقے رچنا ٹاؤن میں زچگی کے دوران عطائی ڈاکٹر کی غفلت کے باعث خاتون زندگی کی بازی ہار گئی۔ تفصیلات کے مطابق علی حیدر اپنی بیوی کو آمنہ کلینک پر لے آ گیا، جہاں عطائی ڈاکٹر آمنہ کے ہاتھوں زیادہ خون بہہ جانے سے خاتون چل بسی۔ لواحقین نے عطائی ڈاکٹر اور کلینک کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ دینا میں SHO تھانہ منگلہ کی زیر نگرانی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن پولیس نے چوری راہزنی کی وارداتوں میں ملوث 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان اسٹریٹ کرائم اور چوری کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ ملزموں سے واردات میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل، پسٹل، نقدی اور موبائل فون برآمد کر لیا گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے 250 پتنگے اور 35 ڈور کے پنے برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروزہ اقبال اور میں ہوں احمد بلال منج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ دودھ کے نام پر زہر بیچنے والے مافیا کے خلاف بڑا بریک ڈاؤن۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے سرگودا میں کارروائی کرتے ہوئے 3000 لیٹر جعلی دودھ تلف کر دیا۔ فوڈ اتھارٹی حکام کے مطابق ٹیموں کی مسلسل ریکی کے بعد کوٹ مومن میں کارروائی کی گئی۔ جعلی یونٹ میں پاؤڈر، کیمیکلز اور گھی سے سفید محلول تیار کیا جاتا تھا۔ جعلی دودھ کو برف تیار کرنے والے سانچوں میں فریز کر کے سپلائی کیا جاتا تھا۔ کیمیکلز اور خشک پاؤڈر کو ضبط کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ DG فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ شہری صحت دشمن عناصر کے خلاف فیس بک اپلیکیشن یا فری ٹیلی فون نمبر 1223 پر شکایات درج کروائیں۔ فیروز والا کے علاقے رچنا ٹاؤن میں زچگی کے دوران عطائی ڈاکٹر کی غفلت کے باعث خاتون زندگی کی بازی ہار گئی۔ تفصیلات کے مطابق علی حیدر اپنی بیوی کو آمنہ کلینک پر لے گیا، جہاں عطائی ڈاکٹر آمنہ کے ہاتھوں زیادہ خون بہہ گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ خاتون کی صحت تسلی بخش ہے، گھر لے جائیں۔ جب محنت کش اپنی بیوی کو گھر لے کر آیا تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ وہ اسے ٹیچنگ ہسپتال شاہدرہ لے گیا، جہاں ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کر دی۔ ڈاکٹرز کے مطابق خاتون کی موت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہوئی۔ لواحقین نے عطائی ڈاکٹر اور کلینک کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کیا۔
जलालपुर भटिया में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शहरी को कत्ल कर दिया। नवाही इलाके कोट इसाक में अलादिता अपने घर के बाहर माल मवेशियों को चारा डाल रहा था कि अचानक फायरिंग शुरू हो गई, जिसके नतीजे में वो जान की बाजी हार गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जराये के मुताबिक कत्ल की वजह पुरानी रंजिश दुश्मनी बताई जाती है। डीपीओ हाफिज आबाद की हिदायत पर पुलिस ने मुलजिम की तलाश के लिए टीम तश्कील दे दी। चिनौट में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ इलाकों से भारी मिकदार में मुनशियात असलहा बरामद होने पर खवातीन समेत 48 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 8 किलो से ज्यादा चर्स, 170 लीटर शराब बरामद कर ली गई। सर्कल सिटी पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 14 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। शोरकोट में हिसास इदारों और महकमा ज़राअत की बड़ी कार्रवाई। शोरकोट से 300 के करीब चीनी के बैग्स बरामद कर लिए गए। मालिक मोहम्मद सादिक अराई ने मौजा मैरक सियाल में चीनी स्टॉक की हुई थी। हिसास इदारे की जानिब से बरवक्त कार्रवाई करते हुए चीनी के स्टोर को सील कर दिया गया। जखीरा अंदोजों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। राजनपुर में गुटखा बेचने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने क्रैकडाउन किया। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ की जेर निगरानी फूड सेफ्टी टीम ने जामपुर में पान शॉप पर छापा मारकर 1200 साशे ममनुआ गुटखा तल्फ कर दिया। ममनुआ गुटके को खुफिया जगह पर छुपा कर रखा गया था। डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक ने बताया कि कवानीन की पासदारी न करने पर पान शॉप मालिकान को भारी जुर्माना किया गया। शहदादपुर में ताजिर की दुकान से डाकू 3 लाख रुपए छीन कर ले गए। वाकये की वीडियो भी सामने आ गई। वाकया थाना शहदादपुर की हदूद जानीपुरा चौक में पेश आया, जहां 2 डाकू ताजिर शुएब शमसी की दुकान से नकदी लूट कर ले गए। मुतासरा ताजिर ने बताया कि 2 डाकू असले के जोर पर दुकान में दाखिल हुए और नकदी ले गए। पुलिस से हमारा मुतालबा है कि छीनी गई रकम वापस दिलवाई जाए और मुलजिमान को सख्त सजा दी जाए। SHO गुलाम हुसैन दिलवानी का कहना था कि वाकये की इत्तला मिलते ही यहाँ पहुंचे मुलजिमान तक जल्द पहुंच जाएंगे। दीना में SHO थाना मंगला की जेर निगरानी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस ने चोरी राहजानी की वारदातों में मुलविस 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम और चोरी की वारदातों में मुलविस थे। मुलजिमों से वारदात में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल, पिस्टल, नकदी और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके 250 पतंगे और 35 पिनेडोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जलालपुर पीरवाला में 3 डाकू ताजिर से लाखों रुपए लूट कर ले गए। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ ताजिर बरादरी ने एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दी, जिससे गाड़ियों की लाइनें लग गई। मुतासरा ताजिर फारूक उर्फ मून और दीगर ताजरान ने कहा कि जलालपुर पुलिस डकैती की वारदातों को कंट्रोल करने में नाकाम है। एक हफ्ते में 4 बड़ी वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। ऐसी सूरत हाल में कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। ताजिर बरादरी ने आला हुकाम से बढ़ती हुई वारदातों पर नोटिस लेने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। समारोह में SSP उमरकोट एजाज शेख की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद मुनशियात फरोश के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पुलिस थाना समारोह ने इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजिम करीम डन्नू को गिरफ्तार कर लिया। करियाना दुकान में चोरी और नकबजनी के मुकदमे में मतलूब मुलजिम रब नवाज कपरी को भी हिरासत में ले लिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने रावलपिंडी में जानवरों की चर्बी से ऑयल बनाने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 6 मन चर्बी और 1 मन हड्डियों को तल्फ कर दिया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक चर्बी की खरीदो फरोख्त का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। चर्बी से तैयार ऑयल को सिर्फ बायो डीजल कंपनियों को फरोख्त करने की इजाज़त है। कवानीन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुनशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां की हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शारजा जाने वाले मुसाफिर के पेट से 38 हेरोइन भरे कैप्सूल्स बरामद कर लिए गए।
लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले मुलजिम के बैग से 795 नशावर गोलियां पकड़ी गई। मुलजिम कराची का रिहायशी था। ANF ने रावलपिंडी मनशियात की स्मगलिंग नाकाम बनाते हुए डेरा इस्माइल खान के रिहायशी मुलजिम से 2 किलो 120 ग्राम चर्स बरामद कर ली। कराची और रंगी बनारस चौक के करीब कार्रवाई में मुलजिम से 11 किलो 600 ग्राम चर्स पकड़ी गई। कोयटा गन चौक के करीब छापे में मुलजिम से 1 किलो चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिमान के खिलाफ इंसदादे मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। उबाड़ो के नवाही इलाके खनबड़ा थाना में डाकुओं ने जमींदार को लूटने के बाद मुजाहमत पर गोली मारकर जख्मी कर दिया। डाकुओं ने लाल खान से गन पॉइंट पर 16,80,000 रुपए लूट लिए और शोर मचाने पर टांग में फायर मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने जख्मी को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतासरा जमींदार के मुताबिक वो ट्रैक्टर खरीदने अहमदपुर शर्किया जा रहा था कि 12 रोड के मुकाम पर डाकुओं ने इसे लूट लिया। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। लियाकतपुर में थाना सिटी पुलिस की कहबा खानों के खिलाफ कार्रवाइयां, 9 खवातीन और 2 मर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एक जवारी को भी हिरासत में ले लिया। तफसीलात बता रहे हैं दरिंदा मोहम्मद पनाह से नुमाइंदा गुलाम अली इस रिपोर्ट में। SHO थाना सिटी लियाकतपुर फरोख सज्जाद राना की सरबराही में पुलिस टीम का कहबा खानों पर छापा। छापे के दौरान 9 तितलियां और 2 भंवरे पकड़ लिए गए। दूसरी कार्रवाई में पर्ची जुआ का कारोबार करने वाले जुआरी को रकम समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मौके पर SHO थाना सिटी लियाकतपुर का कहना था कि जराइम के खात्मे के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। जराइम का खात्मा करना और इलाके में अमन और अमान कायम करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम अली, कोहिनूर न्यूज। CIA और आरिफ वाला थाना सिटी पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई 4 रुकनी नकबजन गैंग गिरफ्तार करके नाजायज असलहा बरामद कर लिया। मुलजिमों ने इलाका भर में मुतादिद वारदातों का इंकशाफ भी किया। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे रजा जैदी से। जी रजा, बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन हसन इकबाल की हिदायत पर DSP सर्कल आरिफ वाला चौधरी इनामुल हक की निगरानी में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। CIA स्टाफ और SHO थाना सिटी राना इमरान टीपू को खुफिया इतला मौसूल हुई कि 65 EB रोड डेरा सुखेरा वाला के करीब कुछ लोग चोरी डकैती की नीयत से छुपे हुए हैं, जिस पर SHO सिटी राना इमरान टीपू ने 4 अफसरान की टीम तश्कील दी, जिनमें ASI मोहम्मद फरीद, ASI मोहम्मद फारूक, ASI मोहम्मद सदीक, ASI असलम शाहीन बमा CIA स्टाफ को इस जानिब रवाना कर दिया। इस टीम ने मौके पर पहुंचकर मुल्जमान को चारों तरफ से घेरे में लेकर 4 अफराद को बमा असला गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में 2 का ताल्लुक आरिफवाला और 2 का ताल्लुक बूरेवाला से बताया गया। मुल्जमान ने आरिफवाला, गग्गो, बूरेवाला में मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ भी किया। मुल्जमान के कब्जा से नाजायज असला भी बरामद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताएं कि निगरान सूबाई वुज़रा हाजी मंजूर अफरीदी और साउल नजीर ने जिला खैबर में आबनोशी और सेहत और सफाई की स्कीमों पर काम तेज करने की हिदायत जारी करती हैं। वजीर एक्साइज हाजी मंजूर खान अफरीदी ने वजीर बल्दियात और दही तरक्की सावल नज़ीर एडवोकेट से उनके दफ्तर में मुलाकात की और पीने के साफ पानी और सेहत और सफाई से मुतल्लिक आवाम को दरपेश मसाइल का जिक्र किया, जिस पर वजीर बल्दियात ने मुतल्लिका म्यूनसिपल अफसरान को दफ्तर बुलाकर उनसे मनसूबों पर ब्रीफिंग ली और हदायत की कि जारी स्कीमों पर काम तेज करके जल्द तकमील यकीनी बनाई जाए। उन्होंने मंजूर अफरीदी को बाज़ ज़ेर तकमील मनसूबों के इफ्तिताह की दावत भी दी। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके गुलबर्ग टाउन में गैर कानूनी इमारतों की तामीर तेजी से जारी है। SBCA के राशि और करप्ट अफसरान की सरपरस्ती में तामीरात धड़ाधड़ जारी है। मजीद जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर इमरान अली की इस रिपोर्ट में। अंधेर नगरी चौपट राज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके गुलबर्ग टाउन में सिस्टम के नाम पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी व सारी है। जराये के मुताबिक SBCA के अफसरान की जेर सरपरस्ती भारी रिश्वत वसूल करके गैर कानूनी 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर और रिहायशी इलाके में कमर्शियल मार्केट और दुकानें बनाई जा रही हैं।
मोहल्ला कमेटी का कहना था कि हम डिप्टी डायरेक्टर से लेकर डीजी एसबीसीए तक दरख्वास्तें जमा करवा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसा लगता है कि शहर में कोई कानून ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। अब तो बिल्डर हजरात भी ये कहते हैं कि ये सिस्टम का काम है। ये बात समझते बालातर है कि ये सिस्टम क्या है। क्या किसी सियासी जमात को ये लोग सिस्टम कहते हैं या फिर कोई और रिश्वतखोर ग्रुप या तंजीम को सिस्टम का नाम दिया जाता है। जराये से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक इन मकानात पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी व सारी है। 1247/8, 1270/8, 710/2, 1067/8, 1359/4, 93/14, 538/14, 1606/2, 1080/9, 1396/2। मोहल्ला कमेटी और अवाम की वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और डायरेक्टर जनरल एसबीसीए से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से सिस्टम के नाम से किए जाने वाली गैर कानूनी तामीरात के सिलसिले को फौरी तौर पर लियारी में रेंजर सिंध के ज़ेर एहतमाम कराची बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताउन से बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले हुए। इख्तितामी तकरीब में डीजी रेंजर्स ने खसूसी शिरकत करके खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान रेंजर सिंध के ज़ेर एहतमाम कराची डिवीजन बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताउन से इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद हाजी अबू बकर ट्रंक वाला बॉक्सिंग अरीना पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम लियारी में किया गया। 4 रोजा जारी रहने वाली चैंपियनशिप में कराची के 60 डिस्ट्रिक्ट के 91 मेल्स और फीमेल्स कैटेगरी के बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास थे। तकरीब में मुख्तलिफ मकातब फिक्र और शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले सिविल, समाजी, बिजनेस कम्युनिटी और स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात, पुलिस और रेंजर्स के आला अफसरान ने शिरकत की। इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के तमाम मुकाबलों में कराची साउथ की टीम ने मजमूई तौर पर ज्यादा मुकाबले जीतकर पहली पोजीशन हासिल की। दूसरी पोजीशन कराची वेस्ट और तीसरी पोजीशन कलार कराची डिस्ट्रिक्ट मलीर ने हासिल की। मेहमान खुसूसी ने पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात और मेडल तकसीम किए। शुरा ने खेलों के इनेकाद की सरपरस्ती और ताउन पर पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के किरदार को आपको बताएं कि टेक्सला कचहरी में फायरिंग करके फरार होने वाले इश्तिहारी को SHO सरमद मलिक ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 3 रोज कबल टेक्सला कचहरी में पेशी पर आए मुखालिफिन पर फायरिंग की थी। मुलजिम 2 मुकामात में इश्तिहारी है जिसे हिरासत में लेकर असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिम उमर ने सितंबर 2022 में साथियों के साथ मिलकर पेशी पर आए दानिश, फरवरी 2022 में साथियों के साथ मिलकर शहरी आदिल को कत्ल किया था। SP पोटोहार मोहम्मद वकास खान ने बताया कि मुलजिम का ठोस शवाहिद के साथ चालान करके सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल चूनिया में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की खुसूसी काविश से मरीजों और शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल चूनिया में MS बिलाल साबिर भट्टी की खुसूसी काविश से मरीजों और चूनिया शहर की आबादी को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इफ्तिताही तकरीब में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह तलावते कुरान पाक, नाते रसूल मकबूल और मरीजों की शिफायाबी के लिए दुआए खैर के बाद तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमिर भट्ट ने फीता काट कर किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चूनिया की इस खुसूसी काविश से अस्पताल में मरीजों के लिए साफ पानी की दस्तयाबी के साथ दूर दराज से पीने के लिए पानी लाने वाले शहरियों के लिए भी आसानियां मुमकिन होंगी। MSTHQ चूनिया का सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पीने का साफ पानी बहुत बड़ी नेमत खुदाबंदी के साथ बीमारियों से बचाव और इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। लोगों को पीने के लिए पानी की फराहमी मरहुमैन के असाले सवाब के साथ जरिया नजात भी है। कैमरामैन बूटा जट के साथ राना इरफान हैदर। लकी मरवत में अमन ईमान के खराब सूरत हाल के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज किया। इस मौका पर मरवत बैठनी कौमी तहरीक ने जलसे का एहतमाम किया। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने होने वाले जलसे में अवामी नुमाइंदों समेत हजारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। चेयरमैन इनाम समेत रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि अमन अमान बहाल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी सूरत महाजिर बनना कबूल नहीं।
आए दिन ऑपरेशन के नाम पर मोबाइल सर्विस बंद करना ज्यादती है तो जोड़ी सड़क पर फौरी काम शुरू किया जाए और मुरव्वत केनाल नहर की बहाली के लिए इकदाम किए जाए। तहरीक के मुशीरान की MPO के तहत गिरफ्तारी करके वारंट ख़त्म किए जाएं। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से कोहाट में नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा सिटीज़ इम्प्रूवमेंट के तहत मनसूबा 3 साल की मुद्दत में 6.5 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। WSSC की जानिब से तकरीब में डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमत वजीर ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोहाट बशीर अहमद, WSSC कोहाट के CEO आरिफ रऊफ भी मौजूद थे। चीफ इंजीनियर मियां मोहसिन गुल ने मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि प्रोजेक्ट के बरवक्त तमीर से सीवरेज के मसाइल हल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पनुआकिल में अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरीब अवाम 2 वक्त के खाने के लिए परेशान है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मकबूल हुसैन भट्टी की रिपोर्ट में। पनुआकिल, ठिकराठो, मुबारकपुर समेत दीगर शहरों में खुर्दनोशी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिसके बायस शहरी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। इस मामले पे शहरियों ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए अपने मौक़िफ़ सामने रखे। जैसे कि आजकल बहुत इतनी महंगाई बढ़ गई है कि लेने के लिए कुछ भी जाओ मार्केट में हर एक चीज़ महंगी मिल रही है। आटा, चीनी, घी और दाल और जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी बंदा नहीं खरीद सकता आजकल। इतनी महंगाई थी कि जो घिनण को वधीक जेके ना शइ महांगी एडी थी कि हद को वधीक का भी शइ घिनण जहिड़ी कान रही था ठिकाने। ठीक है ना, पन्ने वञ, शक्कर वञ, जिथां भी वञ, मतलब महंगाई है। आटा देख लिया 50 रुपए के तक केजी मिलता था, 100 से प्लस हो गया है। और फिर सालन के लिए भी पैसे जो दूध लेते हैं सालन के लिए नहीं है, तो सालन में तो दूध नहीं है। ये जो PDM है, ये जो लोग आकर बैठे हैं हुकूमत पर, दे आर गोना डिस्ट्रॉय दिस कंट्री। व्हाट विल वी डू इफ आवर कंट्री डिफॉल्ट? हम क्या करेंगे अगर हमारा कंट्री डिफॉल्ट कर जाएगा? हम भूख से मरेंगे, हम निढाल हो जाएंगे। तो हमारा ये मुतालबा है इस हुकूमत से, ये हुकूमत आप नाअहल हैं तो हुकूमत आप छोड़ दें, किसी और को। वफाकी वजीर सैफरान तलहा महमूद ने हरीपुर में जर्मन हुकूमत के ताउन से अर्बन रेफ्यूजी सपोर्ट यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने अफगान कमिश्नरेट और जर्मन हुकूमत को खिराज तहसीन पेश किया। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरीपुर वफाकी वजीर सैफरान तलहा महमूद की हरीपुर आमद अफगान कैंपों से बाहर रहने वाले अफगान महाजरीन को पेश आने वाले मसाइल के हल के लिए जर्मन हुकूमत के ताउन से अर्बन रेफ्यूजी सपोर्ट यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौका पर जर्मन फर्स्ट सेक्रेटरी भी मौजूद थी। वफाकी वजीर सैफरान मोहम्मद तलहा महमूद ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारा हरीपुर में काफ़ी बड़ा जो है वो अफगान रेफ्यूजीज़ के हवाले से कैंप है और ये इस वक्त इस तरह का जो यूनिट है ये तीसरा है। पहला पिशावर पे है, दूसरा मर्दान में है, तीसरा जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है। मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि इन्होंने UNHCR और हमारी कमिश्नरेट में हमारे मोहतरम जनाब अब्बास साहब जो कमिश्नर हैं KPK के, इनकी कोशिशों से जो है ये अदारा जो है वो यूनिट जो है ये अमल में आया। वफाकी वजीर सैफरान तलहा महमूद ने मजीद कहा कि मर्दान पेशावर के बाद हरीपुर में भी जर्मन हुकूमत के ताउन से अर्बन रेफ्यूजी सपोर्ट यूनिट के क्याम से अफगान कैंपों से बाहर रहने वाले अफगान भाइयों को तालीम, रिहाइश, कारोबार और सेहत की सहूलियात में पेश आने वाले मसाइल के हल में मदद मिलेगी और इस तरह जर्मन हुकूमत के नुमाइंदगान के जरिए दुनिया भर में पाकिस्तान की तरफ से आगे बढ़ते आपको बताएं कि नारंग मंडी में लेस्को नॉर्थ और साउथ डिवीजनों के मुलाजमीन ने इदारे की निजकारी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी भी करती। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारंग मंडी लेस्को नॉर्थ और साउथ डिवीज़नों के मुलाजमीन ने चेयरमैन यूनियन राना सज्जाद भट्टी, मलिक इफ्तिखार साजिद और मलिक मोहम्मद यासिन की क़ियादत में लेस्को निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुकर्रिरीन मौलवी मकसूद अहमद, मोहम्मद खान, आफ्ताब भट्ट, मोहम्मद अदनान काज़मी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत निजकारी का फैसला वापस ले। मज़ीद जानते हैं मौलवी मकसूद और सज्जाद भट्टी की ज़बानी। जी, मतलब मुहिम चलाई हुई है कि पाकिस्तान के अदारों की निजकारी कर दी जाएगी।
ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के किसी अदारों की हम निजीकारी करने दें। पहले एक बाजू हमारा जो मशरकी पाकिस्तान जुदा कर दिया गया है, अब दूसरे बाजू ये हमारे अदारे हैं और इनको निजीकारी करके और ख़त्म करना चाहते हैं हमारे बाजुओं को। लेकिन नहीं, मजदूरों का ये नारा है पाकिस्तान हमारा है, मजदूरों का ये नारा है पाकिस्तान हमारा है, मजदूरों का ये नारा है हर अदारा हमारा है, मजदूरों का ये नारा है हर अदारा हमारा है, मजदूरों के ये नारे हैं सारे अदारे हमारे हैं। हम पाकिस्तान के किसी अदारे की निजीकारी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी रगों के अंदर हमारे असलाफ का खून मौजूद है। मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने ये बताया कि 10 दर 10 न छोड़े हमने, बहरे ज़ालमात में दरा दिए घोड़े हमने। हम पाकिस्तान की बका के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, कसम उठाई हुई है कि हम जान दे देंगे, लेकिन इस ताबूती ताकतों के कहने पर आकर हुकूमत जो हमारे महकमे को प्राइवेट करना चाहते हैं, ये हम जान देंगे, खून का आखिरी कतरा बहा देंगे, लेकिन अपनी महकमे को प्राइवेट कभी नहीं होने देंगे। लेकिन दूसरी बात है कि कृषि साहब जब हमें इशारा करेंगे, कृषि साहब का इशारा है हमारा खून हमारा है, हम राय कुर्बान कर देंगे, लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा कृषि तुम्हारा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा कृषि तुम्हारा नाम रहेगा। मिल्लत के पासमा जनाब मोहम्मद अली जिना, मजदूरों के तर्जमा जनाब कशीद अहमद खां, मिल्लत के तर्जमा जनाब मजदूर। नारंग मंडी में जमात इस्लामी ने चौधरी जाहिद इमरान को उम्मीदवार MPA नामजद कर दिया। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लाम की क़यादत ने हल्का PP 135 में जमात इस्लामी की सीनियर रहनुमा चौधरी जाहिद इमरान कोलोटाना को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। इस तरह चौधरी जाहिद इमरान कोलोटाना जमात इस्लामी हल्का PP 135 के नामजद उम्मीदवार है। मज़ीद जानते हैं चौधरी जाहिद इमरान कोलोटाना की ज़बानी। जी, पाकिस्तान में हल्का PP 135 नारंग मंडी के अंदर जो निर्दलवाद के अंदर जो हल्का आता है, उसके लिए मुझे MPA का उम्मीदवार नामजद किया है। इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से अवाम में निकलेंगे। जमात इस्लामी ही मैं समझता हूँ कि मुश्किल वक़्त के अंदर जिस वक्त जो माशी हालात बन गए हैं मुल्क के, जमात इस्लामी उसका वाहद हल है, क्योंकि मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा जो नासूर है वो हमारे ऊपर IMF की ग़ुलामी और उसका कर्जा है, और उसके साथ जो हमारे अशराफिया है, जो हमारे वज़ारा हैं, जो हमारी हुकूमतें बनती हैं, उनकी अयाशियाँ हैं कि जो लाखों गाड़ियाँ उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं, जो आवाम के सर से जो पड़ रही है, उनका ये जो पेट्रोल चल रहा है वो आवाम का चल रहा है, हमारे टैक्सों से चल रहा है। और इंशाल्लाह हम आएंगे तो ये सारी गाड़ियाँ भी बंद करेंगे, और हम अपनी जो तनख्वाहें जो TAD और जो लाखों की करोड़ों में बनता है वो भी बंद करके हम आवाम को रिलीफ देंगे और आम आदमी को रिलीफ देंगे, जिससे जैसे कि हमने पहले हमारे ये तरीक़ हुआ है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सराजुल हक साहब जब सीनियर वज़ीर थे तो उन्होंने सिर्फ 18,000 तनख्वाह वहाँ पे लिया, और मुल्क उस वक्त जब सूबा उन्होंने लिया था तो 6 अरब डॉलर्स के ऊपर कर्जा था, और जब वो सीनियर वज़ारत से उन्होंने फारग हुए तो उस वक्त 1 रुपया कर्जा उसके ऊपर नहीं था। इसी तरह नेमुतुल्लाह खान ने कराची के अंदर कराची को संवार के दिखाया, इससे पहले अब्दुल अफगानी ने संभाल कर दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह। SDPO सर्कल गाजी मोहम्मद यासीन जंजोआ ने टनल 5 प्रोजेक्ट के तहत तरबेला डैम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने गैर मुल्की अफराद की सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों और वापदा एहलकारों को मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दौरान ड्यूटी हेलमेट जैकेट के इस्तेमाल और अलर्ट होकर फराइज सर अंजाम देने की हिदायत जारी कर दी। उन्होंने SHO थाना गाजी एजाज अली को हिदायत की कि प्रोजेक्ट में काम करने वाले गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करें। सवात में पिछले दिनों सैलाब ने लोगों के सिरों से छत छीन ली। बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए। फलाही तंजीम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने 20 घर तामीर करके मुतासरीन के हवाले कर दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ मोहम्मद इब्राहिम हुसैन की इस रिपोर्ट में। स्वाद में हालिया सैलाब ने मदियन की गांव इंगराबाद को बुरी तरह मुतासिर किया था। कई घर दरिया में बह गए थे और लोग बेसरो सामान की जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। ऐसे में फलाही तंजीम ने इनके लिए घर बनाकर इनकी चाबियां मालिकान को हवाले कर दी, जिस पर वो काफ़ी खुश है और फलाही तंजीम का शुक्रिया अदा किया। सैलाब ने हमारे 3 घर को मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया था। इसके बाद अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट टीम आई, यहाँ का मुआयना किया और उसने फिर हमारे लिए 2 कमरे बनाई
और हम इससे मुतमईन हैं। उन्होंने फूड पैकेज दिया यहाँ पे। फिर चेयरमैन साहब ने यहाँ पे दौरा किया तो हमने उनको समझाया कि यहाँ पे घर बह गई है दरिया में, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मान लिया। 1-2 महीने बाद उन्होंने फिर विजिट किया और फिर उन्होंने 20 घर हमसे जो वादा किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख रहे हो बनाई। मैं अल-मुस्तफा ट्रस्ट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसने हमारा हौसला अफजाई के लिए हमें घर बना कर दिया है। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा मटेरियल लगाया, अच्छा काम किया। मेरा नाम हफीज़ादा जवाद अहमद है। एक बेहतरीन एक मॉडल घर है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह के फजल करम से वो काम आज अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पजीर हो गया है और लोग अपने घरों पर शिफ्ट हो गए हैं। तंजीम की कोऑर्डिनेटर अखुंज़ादा जवाद ने बताया कि इनकी तंजीमी फेज में भावलपुर में रीजनल पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद ने डीपीओ सईद अब्बास शाह के हमरा पुलिस शोहदा के खानदानों से मुलाकात की। इस हवाले से शोहदा के एजाज में एक तकरीब का इनकाद भी किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान। आरपीओ भावलपुर राय बाबर सईद की डीपीओ भावलपुर सैयद अब्बास शाह के हमरा शोहदा पुलिस की फैमिली के साथ मुलाकात। शोहदा पुलिस के एजाज में एक तकरीब का भी इनकाद किया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर भावलपुर राय बाबर सईद ने पुलिस के शोहदा से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए, उनके बच्चों से उनके तलीमी सूरत के हवाले से भी बातचीत की। आरपीओ ने गुफ्तगू करते कहा कि हमारी पुलिस मुल्क को कौम की हिफाजत के लिए दिन रात ड्यूटी का फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। आपके वालिद ने मुल्क की खातिर जान कुर्बान करके जो अजीम कुर्बानी दी है उसका कर्ज हम पूरी ज़िंदगी अदा नहीं कर सकते। शोहदा पुलिस की वर्षा हमारी जिम्मेदारी है, आपको कभी भी इंतहा नहीं छोड़ेंगे। आपके बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज और उन्हें मुआशरे में कामयाब शहरी बनाना हमारा मिशन है। इस मकसद के लिए शोहदा के बच्चों को ज़िला के बेहतरीन स्कूल, सादत पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल में तालीम दिलवाई जा रही है। इस सिलसिले को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोशिश है। शोहदा फैमिलीज़ की वेलफेयर, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना और हर खुशी गमी में शरीक होना हम पर लाजम है और आप हमें हर खुशी और गमी में अपने साथ पाएंगे। आरपीओ ने मज़ीद कहा कि मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये आपकी अपनी पुलिस है, हम आपके लोगों का हिस्सा है। हम आपकी खिदमत, आपके मसाइल, आपकी जान और माल की हिफाजत के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। डीपीओ भावलपुर से बादशाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस के जवान दहशत गर्दी, जराइम पेशा अनासर के खिलाफ हमारा वक्त सीना सुपर है और शहरों की हिफाजत, अमन और सलामती के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। शोहदा पुलिस हमारे माथे का झूमर और मौसन है। हम अपने शोहदा के लकीन को दुख सुख के ज़मन है। अल्लाह के हजूर दुआ के वो हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, मज़ीद जज्बा से फ़राइज़ से अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। कैमरामैन पूरम स्टार। लोधरा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसाम बिन इकबाल की सरबराही में इंसदादे क्राइम मीटिंग की गई, जिसमें ज़िला में जराइम अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मीटिंग में ज़िला भर के DSPs, SHOs और स्टाफ ने शिरकत की। इजलास में ऑनलाइन पोलकाम सॉफ्टवेयर पर तमाम थाना जात की कारकर्दगी चेक की गई और IG पंजाब का पैगाम स्क्रीन पर दिखाया गया। डीपीओ ने हिदायत की कि वारदात की सूरत में पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की मोबाइल वैन को लाजमी इस्तेमाल करें। सिक्योरिटी ड्यूटियों पर मामूर पुलिस एहलकार अपने इर्द गिर्द नजर रखें। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ओकाड़ा पुलिस ने डाकुओं से बरामद होने वाला 2.25 करोड़ का सामान असल मालिकान के हवाले कर दिया। इस हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद थे। मज़ीद जानते हैं अदील रशीद की रिपोर्ट में। तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन्स उकाड़ा में बरामद शुदा मालो मसरूका हवालगी तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमानाने एजाज आरपीओ साहिवाल डिवीजन महबूब रशीद थे, जिन्होंने डीपीओ उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान के हमरा मिलकर बरामद शुदा माल मसरूका असल मालकान के हवाले किया। 2 माह में उकाड़ा पुलिस ने शानदार कारकर्दगी करते हुए 11 मुनज़्ज़ब गैंग्स के 34 मुलजमान को गिरफ्तार किया और 119 संगीन मुकदमात ट्रेस किए, जिनमें 1,84,07,000 रुपए का बरामद शुदा माल असल मालकान के हवाले किया। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ई गैजेट एप्लीकेशन के जरिए 70,48,439 रुपए मालियत के 229 अदद मोबाइल फोन बरामद किए गए। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल डिवीजन महबूब रशीद ने कहा कि कत्ल, डकैती और राहजनी जैसी संगीन नौयत की मुकदमात में मुलव्वस जराइम पेशा अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए जो पुलिस अफसरानों मुलाजमीन शब रोज मेहनत करते हैं, वो यकीनी तौर पर पुलिस फोर्स और माशरे के लिए किसी सरमाए से कम नहीं। इंतहाई कलील अरसे में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया। न सिर्फ
आपको बताएं कि पीर महल में बार एसोसिएशन की तरफ से निजी हॉल में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सैयद गफ़ार मेहताब शाह ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर जिला भर के जजेस बार एसोसिएशन के सदूर डिप्टी कमिश्नर और DPOs भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सैयद गफ़ार मेहताब शाह ने खिताब करते हुए कहा कि फेयरवेल की रवायत को बरकरार रखने पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। जजेस को यकीन दिलाता हूँ कि अगला प्रोग्राम आपकी अपनी जुडिशल कम्प्लेक्स में होगा। तकरीब से सदर बार नसीम अब्बास बुखारी, साबिक सदर राना इमरान और आबिद चौधरी ने भी खिताब किया। विफाकी वज़ीर तालीम की फीमेल एजुकेशन बीट रिपोर्टर्स के साथ इस्लामाबाद में मुलाकात का एहतमाम किया गया, जिसमें विफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर ने वजारत में जारी तालीमी मंसूबा से आगाह किया। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से सोनिया मलिक की रिपोर्ट में। विफाकी वज़ीर तालीम की फीमेल एजुकेशन बीट रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात का एहतमाम किया गया, जिसमें विफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर ने वजारत में जारी तालीमी मंसूबों से आगाह किया। राना तनवीर का कहना था कि स्कूल से बाहर बच्चों की तालीम के लिए खसूसी इक़दाम कर रहे हैं और पाकिस्तान में 22.8 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। वजारत तालीम में दही इलाकों में स्कूल ऑन व्हील बसेस का आगाज किया गया है। इस मंसूबे के तहत प्राइमरी स्कूल तक बच्चों को तालीम दी जा रही है। सूबे के साथ राब्ते में है, वहाँ पर भी ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। स्कॉलरशिप के तहत 50% लड़कियों को तालीम दी जा रही है। वजारत बच्चों की तालीम के तसलसल को कायम रखने के लिए संजीदा है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में होने वाले वाक़ये पर वजारत तालीम का कहना था कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आए रोज होने वाले वाक़यात में इंतजामिया की नाअहली है। इस हवाले से यूनिवर्सिटी से ब्रीफिंग लेंगे। प्रोडक्शन टीम के साथ स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम जश्न बहारा लाहौर मैराथन टूर डी लाहौर साइकिल रेस के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। स्पोर्ट्स मेगा इवेंट कल से लाहौर में मुनक़िद होगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अमजद की रिपोर्ट में। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम जश्न बहारा लाहौर मैराथन टूर डी लाहौर साइकिल रेस के इंतजामात को हतमी शक्ल दे देगी। DG स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी की ज़ेर सदारत नेशनल हॉकी स्टेडियम में अहम इजलास हुआ। इजलास में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, कॉलेज एजुकेशन, रेलवे, सिविल डिफेंस, पुलिस, रेस्क्यू 1112 के अफसरान, एथलेटिक्स, साइकिलिंग एसोसिएशन के ओहदेदारान शरीक हुए। इजलास में कल 12 मार्च को होने वाली लाहौर मैराथन फैमिली रेस, व्हील चेयर रेस और टूर डी लाहौर साइकिल रेस के इंतजामात का जायजा लिया गया। 42.196 किलोमीटर लाहौर मैराथन के रूट पर 14 कैंप लगाए जाएंगे। मैराथन के रूट पर खिलाड़ियों के 8 वाटर पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। DG स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी ने कहा कि लाहौर मैराथन और रेसेस के रूट्स पर सिक्योरिटी कैमरे नस्ब होंगे। मैराथन फैमिली रेस, व्हील चेयर रेस और टूर डी लाहौर साइकिल रेस में रेस्क्यू 1112 और महकमा सेहत की टीमें साथ होंगी। मैराथन फैमिली रेस, व्हील चेयर रेस और टूर डी लाहौर साइकिल रेस लिबर्टी चौक से शुरू होगी। मैराथन और तमाम रेसेस मुकर्रर रूट से होती हुई लिबर्टी चौक पर इख्तिताम पजीर होंगी। इजलास में ADC जीशान रांझा, डायरेक्टर एडमिन एजाज मुनीर, डायरेक्टर यूथ अफेयर सैयद उमर हसन, सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर जाहिर रजा बुखारी ने कहा कि मज़ारात की सिक्योरिटी और वक्फ प्रॉपर्टीज की सर्विलेंस, मॉनिटरिंग और निगरानी के लिए मौसर हिकमत अमली तश्कील देती है। इस ज़मन में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के इश्तराक से प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, जिसके मुताबिक औकाफ के तमाम मज़ारात, इनसे मुल्हक मसाजिद पर सिक्योरिटी, सर्विस डिलीवरी और ज़ायरीन के लिए हमा वक्त सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाएं। कुशादगी बुक्स, वक्फ अराजियात के नीलाम आम जैसे अमूर की मौसर मॉनिटरिंग भी शामिल है। वो इस ज़मन में ऐवान औकाफ में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से दी गई है। ब्रीफिंग के मौका पर गुफ्तगू भी की गई। इस मौका पर एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर अहमद अफनान, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ डॉक्टर आमिर अली चिश्ती, डायरेक्टर स्टेट औकाफ वसीम अब्बास, डायरेक्टर फाइनेंस औकाफ खालिद मसूद फारूक,
डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स औकाफ रफ़ीक नूर वटू और डायरेक्टर लीगल मोहम्मद असलम सपरा समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने मजीद कहा कि गवर्नेंस को बेहतर और वक्फ असासाजात को महफूज और मुफीद बनाना बुनियादी तरजीह है। मुलाजमीन को अपनी इस्तेदादगार बढ़ाने की तरफ खुसूसी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम जश्न चिन्योट की 7 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया, जिसमें शहरियों की तफरीह के लिए रंगारंग प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद सुमैर निसार की इस रिपोर्ट में। ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम जश्न चिन्योट की 7 रोज़ा रंगारंग तकरीबात का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। इस मौका पर कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वत सईद, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसफ रजा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वसीम रियाज खान, फोकल पर्सन जश्न चिन्योट एडीसी जीत अला सईद और सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब शाहिद महमूद समेत सियासी समाजी हलकों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर फोकल पर्सन जश्न चिन्योट तला सईद का कहना था, आज ये हमारा जश्न चिन्योट 2023 का बाज़ाब्ता आगाज़ आपके सामने इस रंगारंग तकरीब से हो रहा है। आप देख रहे हैं पूरे पंजाब से हमारे पास नेज़ाबाजी की टीम्स शिरकत के लिए आई हुई हैं और एक बहुत अच्छी तफरीह है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन पे। हमने ये एक 7 रोज़ा जो है वो जश्न चिन्योट का इंतजाम किया है। जश्न चिन्योट के पहले दिन नेज़ाबाजी दौड़ के मुकाबला जात हुए और शाम को महफिल मुशायरा भी सजाया गया। नेज़ाबाजी और दौड़ के मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वालों में कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद ने इनाम भी तकसीम किए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद सुमैर निसार, कोहिनूर न्यूज़।